Yes, welcome to this video. In this video section, I will discuss. I will just reading class 9 geography chapter 6 part 1 population जनसंख्या जनसंख्या Okay, can you imagine a world here? Can you imagine a world without human beings? Can you imagine a world without human beings who would have utilized the resource and created social and cultural environment? The people are important to develop the economy and the society. The people make and use resource and are themselves resources with varying quality. With a different varying VARY and varying quality. Coal is but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it resource. Natural events like a flood or tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town. देखिए यहाँ पर क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। Hence population is the pivotal element in social studies. It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. Resources, calamities and disasters are all meaningful only in relation to human beings, their numbers, distribution, growth, and characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of environment. देखिए इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व यह एक संदर्भ बिंदु है कि संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। Human beings are producers and consumers of earth resources, and therefore it is important to know how many people are there in a country, where do they live, how and why their numbers are increasing, and what are their characteristics. The Census of India provided us with information regarding the population of our country. देखिए मानव पृथ्वी के संसाधन उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। तो वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या संबंधी जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या संबंधी 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो फिर आपको है क्या वी आर प्राइमरी concerned with 3 major questions about population. First is population size and distribution. First is population size and distribution. How many people are there and where are they located? How many people are there and where are they located? Second, population growth and processes of population change.
How has the population grown and changed through time? And third, characteristics or qualities of the population. What are their age, sex, composition, literacy level, occupational structure and health conditions? अब देखिए पहला जिसमें कहा जनसंख्या का कार्य एवं वितरण की बात करें तो लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। तीसरा जनसंख्या पहला जनसंख्या का कार्य एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। एंड सेकंड जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। थर्ड जनसंख्या गुण या विशेषता, उनकी उम्र, उनका लिंग अनुपात, उनका साक्षरता दर, उनका व्यावसायिक संरचना, उनकी व्यावसायिक संरचनाएं तथा स्वास्थ्य की अवस्थाएं क्या है। देखिए पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको हियर पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आपको है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ ऑन, देखिए इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ ऑन मार्च 2011 stood at 1210.6 million, which amount for 7.5% of the world's population. These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer, which accounts for 2.4% of the world's area. देखिए मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या लगभग 12.106 लाख थी, 12.106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थानीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। The 2011 census data revealed that Uttar Pradesh, with a population size of 199 million, is the most populous state of India. Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population. On the other hand, the Himalayan state of Sikkim has a population of just only 0.6 million, and Lakshadweep has only 64,429 people. Almost half of India's population lives in just 5 states. These are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Andhra Pradesh, Rajasthan. The biggest state in terms of area has only 5.5% of total population of India. देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो कहा गया कि 12.1 करोड़ लोग भारत के, देखिए यह 12.1 करोड़ लोग मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो कि विश्व जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, देखिए भारत के लगभग आधी आबादी के उत्तर प्रदेश केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। अब कि भारत में जनसंख्या का असमान वितरण का क्या कारण है, तो देखिए फाइंड व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। What could be the reason of uneven distribution of population in India? देखिए India's population distribution by density. Population density provides a better picture of uneven distribution. Population density is calculated as the number of person per unit area. India is one of the most densely populated countries of the world. देखिए घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, देखिए जनसंख्या घनत्व आपको असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। अब एक खास बात है कि डू यू नो क्या आप जानते हैं, ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। देखिए केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। एक खास बात जो आपके यहाँ पर दिए जा 2 मैप्स आपके यहाँ पर है,
उस पे देखिए यहाँ पर एक सेंसस की बात की गई। पहला में देखिए सेंसस क्या होते हैं या जनगणना क्या होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए। ये सेंसस देखिए यहाँ पर, ये सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमिरेशन, देखिए एनुमिरेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमिरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन periodically in India. The first census was held in the year 1872. The first complete census, however, was taken in the year 1881. In the year 1881, since then, censuses have been held regularly every 10th year. Regularly since then censuses have been held regularly every 10th year. The Indian census is the most comprehensive source of demographic, social, and economic data. Have you ever seen a census report? Check in your library if it has one. अब देखिए क्या है कि इसमें हिंदी के अंदर देखिए एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। देखिए भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहत स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी? आप अपने पुस्तकालय में से देख सकते हैं। तो हियर इज मैप, देखिए यहाँ पर कुछ फिगर आपको है। पहला पॉपुलेशन, आपको यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन जो आप यहाँ पर देख रही है क्या, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आप यहाँ पर देख एक इमेज बना के यहाँ पर देखिए जनसंख्या का पूरे विश्व में आपको कितना है। देखिए यहाँ पर क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 82.5% है, शेष विश्व 82.5% है। और इंडिया यहाँ पर 2011 के अनुसार हम देखिए 17.5% मतलब पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या जो है वो 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और शेष विश्व मात्र 82.5% है। अब एरिया के अनुसार देखा जाए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 97.6%। पूरे विश्व में जो एरिया है, पूरे विश्व में जो आपको एरिया है वो 97.6% एरिया है। लेकिन भारत का एरिया मात्र 2.4% है। भारत का क्षेत्र मात्र कितना परसेंट है, 2.4% ही आपको है। फिर आप ये जो आपको देख रहे हैं विश्व के क्षेत्र में जनसंख्या भारत का भाग दिखाया गया। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए कि इसमें भी आपको दिखाया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का एक यहाँ पर इमेज शो किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जनसंख्या के वितरण, वो आपको यहाँ पर शो किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितना % लोग आपको है। ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, जब आपको जिस राज्य की जरूरत पड़ेगा तो उसका अलग से आप डाटा ले सकते हैं। तो फिर आपको लेकिन यहाँ उसके बाद जो खास बात है, आपको यहाँ पे एक मैप भी दिया गया है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें देखिए कई रंगों से दर्शाया। इसका मतलब जो आपको लाल रंग जो आप देख रहे हैं वो आपको 1000 नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जहाँ जहाँ आपको रेड एरिया आप देख रहे हैं, ये जो आप जहाँ रेड एरिया यहाँ पर देख, इसका मतलब है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन इलाकों में आपको 1000 या उससे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बाकी में कुछ कम भी है। तो अब यहाँ देखिए ये आपको, उसके बाद हम आगे यहाँ पर चलते, इसमें जो आपको कहा गया इसके बाद आपको आगे यहाँ पर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात की गई है। देखिए क्या कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी जो वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ए स्टडी ऑफ द फिगर 6.3 shows the pattern of uneven distribution of population densities at the state level। अब यहाँ देखिए क्या कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। यहाँ एक इसमें देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो आपको खास चीज़ आपको कही गई है वो आपको यहाँ पर देखना। देखिए इसमें आपको कहा गया क्या कि 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए नोट द स्टेट, देखिए नोट यहाँ एक्टिविटी भी आपको दिया गया। स्टडी द फिगर 6.3 एंड कंपेयर इफ एंड compare it with figure 2.4 and figure 4.7. Do you find any correlation? Do you find any correlation between these maps? यहाँ आपको कहा गया
उसके बाद आपको इसमें जो कहा गया क्या कि द नॉट द स्टेट्स, यहाँ पर क्या कि नॉट द स्टेट विथ पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रग टेरेन, देखिए RUGGED, रग टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर प्राइमरी रिस्पॉन्स primarily responsible for sparse population in these area. Which states have density, which states have density below 2050 persons per square kilometer। देखिए 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताएं। पर्वतीय क्षेत्र प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या को उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों है? देखिए असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव moderate population densities, hilly dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas। देखिए असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। देखिए द नॉर्दर्न प्लेन्स आर केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन densities because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall। Identify the three states of the northern plains with high population densities। अब देखिए उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा वर्षा होती है। उत्तरी मैदान का अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताएं। हाँ, फिर आपको यहाँ एक जो दिया गया, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेज। देखिए जापान, देखिए जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन प्रक्रिया की बात की गई यहाँ पे। इसमें कहा गया जनसंख्या, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेज। यहाँ देखिए क्या है कि इसमें ये कहा गया जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया आपको देखिए। पॉपुलेशन इज ए डायनामिक फेनोमेनन, देखिए पॉपुलेशन इज ए डायनामिक फेनोमेनन, द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंट्रक्शन ऑफ 3 प्रोसेसेज, नेमली बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन। अब यहाँ देखिए कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया। आबादी की संख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव का आपको होता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द लास्ट 10 years such a change can be expressed in 2 ways, in terms of absolute numbers and in terms of percentage change per year। देखिए यहाँ पर क्या कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन आपको 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव कारण होता है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि की बात की गई है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है, जनसंख्या वृद्धि का आपको अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। यानी कि क्या कि द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर ऑन डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सबट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन एग्जाम्पल दैट ऑफ 2001 फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन एग्जाम्पल दैट 2011। इट इज रेफर टू हैज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया प्रत्येक वर्ष यहाँ देखिए क्या कि प्रत्येक वर्ष एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे कि 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे
जैसे यहाँ आपको कहा गया जैसे प्रतिवर्ष आपको 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर दो व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। अगर हम देखें क्या कि द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. It is studied in percent per annum. Example, a rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% for every 100 person in the base population. This is referred to as the annual growth rate. India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 210 million in 2011. In 2011, हियर इज ए टेबल, देखिए द मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर देखिए इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ का आपको दिया गया है, तो इसमें आपको दिया गया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट डाटा एंड नो कम ऑन अहेड। देखिए टेबल 6.1, टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4a एंड 4b, 6.4b reveal that from 1951 to 1981 the annual rate of population growth was steadily increasing, which explain the rapid increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981। देखिए सारणी 6.1 और सारणी 6.4 और एवं सारणी 6.4 वो दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 से 3,610 लाख से बढ़कर 1981 में 6,830 लाख हो गए। अब यहाँ पे एक देखिए आपको कहा गया क्या, सिंस 1981, देखिए since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. During this period, birth rates declined rapidly, and still 182 million people were added to the total population in the 1990 decades alone, an annual addition larger than ever before. It is essential to realize that India has a very large population. When a low annual rate is applied to a very large population, it yields a देखिए यहाँ पर क्या it's yield a large absolute increase. When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. India's annual increase, देखिए India's annual increase in population is large enough to neutralize effort to conserve the resource and endowment and environment. हाँ, किंतु 1981 से वृद्धि देखिए किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी के 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान आवश्यक है, भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब देखिए भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 को जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वालों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या वार्षिक वृद्धि संसाधन एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है था। 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। अब देखिए सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। इसमें जो आपको खास बातें आपको है, देखिए यहाँ पर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ, देखिए एक खास जो बातें आपको यहाँ कही गई है।
हाँ, इससे किंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1,820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं बाकी पड़ चुका है। अब आगे देखिए, द ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज indeed a positive indicator of the effort of birth control. Despite that, the total additions to the population base continue to grow, and India may overtake China in population in 2023. देखिए, आपको प्रोसेसेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ, प्रोसेसेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ। देखिए, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, आप देखिए जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, देयर आर 3 मेन प्रोसेसेज ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन: बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। देखिए, यहाँ पर जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर है, मृत्यु दर है एवं प्रवास आपको है। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स की बात आपको है। बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया हैं: जन्म दर है, मृत्यु दर है एवं प्रवास है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। देखिए, बर्थ रेट, देखिए बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1,000 पर्सन इन अ ईयर। इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स देखिए बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट्स। डेथ रेट्स इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पर्सन इन अ ईयर। Death rate is the number of deaths person देखिए death rate is the number of deaths per 1,000 person in a year. The main cause of the rate of growth of the Indian population has been the rapid decline in death rates. अब एक देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। अब यहाँ पे एक खास देखिए क्या कि टिल 1980 हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स लेड टू ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स and resulting in higher rates of population growth. Since 1981, birth rates have also started declining gradually, resulting in a gradual decline in the rates of population growth. What are the reasons for this trend? अब देखिए, 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया था। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई थी। 1981 धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चरण का क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर आपको क्या कि द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरी। देखिए, माइग्रेशन कैन बी इंटरनल माइग्रेशन, यहाँ देखिए क्या कि माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक आपको प्रवास है। लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए क्या कि इंटरनल, देखिए यहाँ पर क्या इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। माइग्रेशन प्लेज ए वेरी साइग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब एक जो यहाँ पर कहा गया, इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। माइग्रेशन प्लेज ए वेरी साइग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसमें कहा कि आंतरिक प्रवास जनसंख्या आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। आंतरिक प्रवास जनसंख्या आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक खास देखिए आप एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम गतिविधि कहते हैं। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आगे यहाँ जस्ट गो प्रोसीड। देखिए, इन इंडिया मोस्ट, यहाँ जो कहा गया इन
India, like in India, most migration have been from rural to urban areas because of push factor in rural areas. These are adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas and the pool of the city in terms of increased employment opportunities and better living condition. Migration, देखिए यहाँ पर migration is an important determinant of population change. It changes not only the population size but also the population composition of urban and rural population. In terms of age and sex composition in India, the rural-urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011. There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, that is 2001 to 2011. देखिए यहाँ पर क्या कि प्रवास, इसमें आपको भारत अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण पुश कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। फिर देखिए प्रवास, आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्रवास जनसंख्या, देखिए प्रवास, ये जो आपको यहाँ पर प्रवास जनसंख्या परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या संरचना को भी परिवर्तित करता है। देखिए भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बढ़कर 35 से बढ़कर 53 हो गई। अब देखिए एज कंपोजिशन आयु संरचना की बात यहाँ पर की गई है। एज कंपोजिशन या आयु संरचना जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें देखिए द एज कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए टू एन इम्पोर्टेंट डिग्री ए पर्सन्स एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही सी नीड्स बाइज does and his her a capacity to perform. Consequently, the number and percentage of a population found within the children working age and aged group are notable determinants of the population social and economic structure. The population of a nation is generally grouped into three broad categories. देखिए किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। देखिए एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला यहाँ पर देखिए क्या बांटा जाता है। पहला आपका चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 ईयर्स। चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 ईयर्स बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम। आपके देखिए किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें आपको पहला देखिए बच्चे, चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 ईयर्स, जिसको हम बच्चे बोलते हैं। देखिए देयर आर इकोनॉमिकली, देखिए आपको क्या कि देयर आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, देखिए देयर आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। देखिए यहाँ पर क्या कि बच्चे साधारण 15 वर्ष से कम में क्या ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं बच्चे, ताकि इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकताएं होती है। वर्किंग एज मीन्स की 15 to 59 ईयर्स। देखिए दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड biologically reproductive, they comprise the working population। देखिए ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील, यहाँ देखिए क्या ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, तो यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। अब एक खास वर्किंग एज के बाद यहाँ पर एक खास जो आपको चीज़ दिया गया है, एज अबव 59 ईयर। देखिए एज अबव 59 ईयर्स, इट मीन्स की
देखिए एज अबव 59 ईयर्स इट मीन देखिए यहाँ पर क्या कि एज अबव 59 ईयर देखिए दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव देखिए दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड दे मे बी वर्किंग voluntarily but they are not available for employment through रिक्रूटमेंट। अभी हमने क्या कि ये वृद्ध मतलब 59 वर्ष से अधिक है, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, ये सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी नियुक्ति नहीं होती है। अब आगे यहाँ पे एक डाटा भी आपको दिया गया है। जो आपको वैक्स है वो 58.7% है, वृद्ध जो है 6.9% और बच्चे 34.4% है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक डाटा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपातों को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए क्या कि बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपातों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये सम उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र दर्शाया गया है। इस बात को देखिए द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, देखिए आपको यहाँ पर क्या कि द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड the aged affect the dependency ratio because these groups are not producer, and the proportion of the three groups in India's population is already presented in figure 6.5 and activity की सेक्स रेशियो यहाँ पर दिया गया है, लिंग अनुपात जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि देखिए सेक्स रेशियो इज डिफाइंड हैज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी एट ए गिवन टाइम। द सेक्स रेशियो इन द country has always remained unfavorable to females. Find out why this is so. Table 6.2 shows the sex ratio from 1951 to 2011. देखिए यहाँ पर क्या कि प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2000 के बीच लिंग अनुपात को 6.2 में आपको दर्शाया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है एक यहाँ पर टेबल भी आपको दिया गया है। डू यू नो, यहाँ पे एक डू यू नो की बात आपको की गई है कि आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर केरला हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखिए पुडुचेरी हैज 138 पुडुचेरी हैज 138 सॉरी 38 पुडुचेरी हैज 138 फीमेल्स इन फॉर एवरी 1000 मेल्स व्हाइल दिल्ली हैज ओनली 866 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एंड हरियाणा हैज जस्ट 870 क्या केरल में प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या 1084 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पर 1038 है, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 866 तथा हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 877 महिलाएं हैं। देखिए व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सच वेरिएशन। सबसे अधिक देखिए यहाँ पर क्या इसमें ज्ञात करिए सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की आपको है। तो देखिए यहाँ पर ऐसी वेरिएशन ऐसी विविधता का क्या कारण हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात की गई। लिटरेसी रेट जो आपको है आपको जिसे बोलते हैं लिटरेसी रेट जो आपके यहाँ पर साक्षरता दर जो है उनको समझने का प्रयास कीजिए। लिटरेसी रेट जो यहाँ पर कहते हैं, देखिए क्या लिटरेसी रेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्मेड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर ए सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। According to the census 2011, a person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate। यहाँ देखिए क्या साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकते हैं तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकते हैं। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। जो जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए there has been a steady improvement in the literacy levels in India and the literacy rate in the country has per the census of 2011 is 73%, 80.9% for males and 64.6% of females for females। Why do such differences exist? यहाँ पे कहा 2011 जनगणना के अनुसार हम क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है जो किसी भाषा को
समझ कर पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? तो फिर आपको यहाँ देखिए वेबसाइट संरचना की बात आपको की गई। वेबसाइट संरचना देखिए जिसको हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पर। देखिए द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव देखिए द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू हैज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर and an enormous variety of occupations are found in any country. Occupations are generally classified as primary, secondary and tertiary. अब यहाँ देखिए वेबसाइट संरचना में क्या क्या आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसाय संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। अब एक खास बात कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज में देखिए क्या होता है। Primary activities include agriculture, animal husbandry, factory, fishing, mining, and acquiring etc. Secondary activities include manufacturing industry, building and construction work etc. Tertiary activities include transport, communication, commerce, administration, and other services. अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक कृषि, प्राथमिक में आपको कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मत्स्य पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्रियाकलाप उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों आपको परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल आपको है। अब देखिए यहाँ पर जो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड नेशंस हैव ए हाई proportion of people in secondary and tertiary activities. Developing countries tend to have a higher portion of their workforce engaged in primary activities. In India, about 64% of the population is engaged only in agriculture. The proportion of population dependent on secondary and tertiary sectors is about 13 and 20% respectively. There has been an occupational shift in favor of secondary and tertiary sectors because of growing industrialization and urbanization in recent times. यहाँ आपका विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 तथा 20% है। वर्तमान समय बढ़ते औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। अब आप यहाँ पर जो खास बात है आपको कही गई, देखिए स्वास्थ्य की भी बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए। हेल्थ इज देखिए यहाँ पर क्या है कि health is an important component of population composition which affect the process of development. Sustained efforts of government programs have registered significant improvement in the health condition of Indian population. देखिए death rates have declined from 25 per 1,000 population in 1951 to 7.2 per 1,000 in 2011, and life expectancy at birth had increased from 36.7 years in 1951 to 67.9 years in 2011 in 2012। अब यहाँ देखिए क्या है कि स्वास्थ्य की बात जो आपके यहाँ पर की गई है कि स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1991 प्रति 1025 थी 2011 में घटकर प्रति 1007.2 रह गई। औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष थी बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष आपको हो गई। देखिए यहाँ पर द सब स्टैंडर्ड
improvement is the result of many factors, including improvement in public health, prevention of infectious disease, and application of modern medical practice in diagnosis and treatment of ailments. अब यहाँ देखिए क्या कि महत्वपूर्ण सुधार कारकों, तो जो आपके यहाँ कहा गया महत्वपूर्ण सुधार कारकों, जैसे क्या महत्वपूर्ण सुधार कारकों, महत्वपूर्ण सुधार कारकों से बहुत देखिए महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोग इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से परिणामस्वरूप हुआ है। देखिए महत्वपूर्ण सुधार में बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणामस्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के स्वास्थ्य का स्तर बहुत चिंता का विषय है। मुख्य चिंता का विषय प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं एक उचित जनसंख्या नीति के अनुसार हल करने की आवश्यकता आपको है। फिर आपको यहाँ पर जो खास आपको कहा गया कि डेस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इज ए मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। द पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल एंड मेल न्यूट्रिशन afflict a large percent of our population. Safe drinking water and basic sanitation amenities are available to only 1/3 of rural population. These problems need to be tackled through an appropriate population policy. अब यहाँ पे जो कहा गया क्या महत्वपूर्ण सुधार कारकों यहाँ पे देखिए एडोलेस्केंट आपको यहाँ पर कहा गया एडोलेस्केंट पॉपुलेशन की बात आपको की गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोर जनसंख्या जिसको बोलते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेस्केंट पॉपुलेशन। इट कंस्टिट्यूट्स देखिए यहाँ पर क्या इट कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एडोलेस्केंट्स आर जनरली grouped in the age of group of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future देखिए यहाँ पर क्या कि एडोलेस्केंट्स यहाँ पर क्या कि एडोलेस्केंट्स आर जनरली grouped in the age of 10 to 19 years. They are most important resource for the future. Nutrition requirement of adolescents are higher than those of normal child or adult. Poor nutrition can lead to deficiency and stunted growth, but in India the diet available to the adolescents inadequate in all nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. किशोर जनसंख्या आप बात करते हैं, किशोर जनसंख्या की बात आप क्या करते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। देखिए किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं। वे भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती है। विकास की प्रक्रिया उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए कि शिक्षा के प्रसार इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब एक खास चीज़ यहाँ पर कहा गया, देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात यहाँ पर करते हैं। इसमें जो आपको कहा गया देखिए रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952. The family welfare program has sought to promote responsible and planned
parenthood on a voluntary basis. The National Population Policy (NPP) 2000 is a culmination of years of planned effort. The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30%, 1,000 live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promoting delayed marriage for girls, and making family welfare a people central program. देखिए यहाँ पर क्या परिवारों के आकार को सीमित रख एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार था सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के कार्य थे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने को प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के नीति का ढांचा प्रदान करती है। फिर देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 एंड किशोर की बात आपको यहाँ पर की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देखिए एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंट्स की बात आपके यहाँ पर है। देखिए एनपीपी आइडेंटिफाइड एडोलसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन बिसाइड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। द पॉलिसी पुट्स ग्रेटर emphasis on other important needs of adolescents, including protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted disease (STDs). It called for programs that aim towards encouraging delayed marriage and childbearing, education of adolescents about the risks of unprotected sex, making contraceptive service accessible and affordable, providing food supplements, nutritional service, and establishing legal measures to prevent child marriage. People are the nation's most valuable resource. A well-educated, healthy population provides potential power. अभी देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोरियों की पहचान जनसंख्या उस प्रमुख विभाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों में किशोरियों और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों में किशोरियों की संरक्षा या संरक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोरियों असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवा और गर्भ निरोधक सेवा को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवा उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। देखिए किसी भी राष्ट्र के वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद देखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण ग्रोसरी भी आपको यहाँ पर दिया गया, उसको यहाँ पर देखिए। तो ये जो आप ग्रोसरी यहाँ पर आपको देख रहे हैं, इस ग्रोसरी को देखिए। सबसे आपको देखिए यहाँ पर ग्रोसरी जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो पहले आपके यहाँ पर क्या पहले आपको यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या अबदाब आपको देखिए शब्दावली के अंतर्गत हिंदी शब्दावली और अंग्रेजी शब्दावली थोड़ा सा आपको डिफर है। यहाँ देखिए अवसादी सेल्स एलोवेरा देखिए आप एडोलसेंट्स है, मतलब कि अबदाब है। देखिए आप एडोलसेंट्स की बातें जो आपको है वो आपको बाद में की गई है। इसको हिंदी और इंग्लिश का जो शब्दावली है वो कम्प्लीटली अलग है। तो यहाँ पर देखिए एक पहले हिंदी को ही देख लीजिए। इसमें देखिए अबदाब है। अबदाब क्या हो, देखिए अबदाब क्या ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है, उसी को हम अबदाब कहते हैं। अब अवसादी सेलें क्या हो, देखिए अवसादी सेलें क्या होते हैं। अवसादों से बनी हुई सेलें जिनमें पदार्थ संरचनाएं होती है उन्हीं को हम अवसादी सेलें कहते हैं। आग्नेय सेल क्या होते हैं, वे सेलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है, उसी को हम आग्नेय सेलें कहते हैं।
होते हैं। देखिए आधार जनसंख्या क्या होती है? आधार जनसंख्या जो आपको होते हैं दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को आधार जनसंख्या बोलते हैं। आश्रित अनुपात क्या होता है? आश्रित आयु 15 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात होता है, आश्रित अनुपात होता है। देखिए आंतरिक अफवाह क्या होता है? कि आंतरिक अफवाह क्या होता है? एक ऐसा अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता, वर्ण आंतरिक समुद्रों वर्ण आपको आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच क्या होता है? देखिए आपको धरातल अथवा समुद्र की तलहटी प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप क्या? एक बहुत बड़ा भूखंड एक उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्ट अलग होता है, उसी को उपमहाद्वीप कहते हैं। किशोर अवस्था क्या होता है? किशोर अवस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल अवस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्राय 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या का घनत्व आप यहाँ पर देखिए प्रति इकाई क्षेत्र में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर, देखिए जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। देखिए वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। और देखिए जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जलोढ़ मैदान क्या है? नदियों द्वारा बहा कर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग को जलोढ़ मैदान कहते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवोम क्या होता है? जीओम देखिए जीओम जो होता है एक से जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में पाए जाने उत्पादक समूह को जीवोम कहते हैं। झील क्या होता है? एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह की गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर पूर्णतः स्थल से घिरी हो उसी को झील कहते हैं। एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह की गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो उसी को हम झील कहते हैं। नवीन या युवा पर्वत क्या होता है? कि पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोरदार या वरिष्ठ पर्वत जैसे कि हिमालय आल्प्स एंडीज की पर्वत। उसके बाद निमंजन क्या? जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह से नीचे धंसने की क्रिया से आपको है। नेशनल पार्क क्या? देखिए एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है उसी को हम नेशनल पार्क बोलते हैं। पठार कहते हैं विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज धार वाला हो उसी को हम पठार बोलते हैं। देखिए पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण कहते हैं कि वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। अब देखिए पर्वत क्या होता है? कि पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है उसी को हम पर्वत कहते हैं। पशु पक्षी किसी दिव्य क्षेत्र की जैव संपदा को कहते हैं। प्रवर्सन क्या? देखिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवर्सन कहलाता है। आंतरिक प्रवर्सन का अर्थ है कि लोगों का एक ही देश में आना जाना था। बाह्य प्रवर्सन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे अप्रवास इमिग्रेशन IMMIGRATION इमिग्रेशन कहते हैं। जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवास इमिग्रेशन कहते हैं। IMIGRATION इमिग्रेशन कहते हैं। अब के पारिस्थितिकी तंत्र देखिए यहाँ पर एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण था उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण था उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना उसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। भ्रंश क्या होता है? आंतरिक हलचल के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके साथ चट्टानें खिसक जाती है उन्हीं को भ्रंश कहते हैं। भारतीय भूभाग क्या? देखिए भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हो उसी को हम भारतीय भूभाग कहते हैं। भारतीय मानक समय क्या? देखिए भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है।
भूगर्भीय क्या होता है? पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धातु की भू आकृतियों विस्तृत परिवर्तन के उत्तरदायी होती है, उसी भूगर्भीय कहते हैं। भूगर्भीय प्लेट क्या होता है? भूगर्भीय प्लेट क्या होता है? प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना को हम भूगर्भीय प्लेट बोलते हैं। प्रॉपर्टी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना को भूगर्भीय प्लेट बोलते हैं। भूसंतति क्या होता है? देखिए भूपर्पट्टी में देखिए क्या भूपर्पट्टी में विहित गर्त अथवा द्रोण या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भू संरचनाओं से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है, उसी को हम धंसता जाता है। देखिए यहाँ पर क्या एक यहाँ पर भू संरचना क्या होता है? देखिए भू परपट्टी में विहित गर्त अथवा द्रोण या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भू संरचनाओं से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी सिरों की मोटी परतों निर्माण होता है। मृत्यु दर क्या? देखिए मृत्यु दर प्रति जनसंख्या पे एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब देखिए मानसून की बात की गई, मानसून की बात यहाँ पर की एक बड़े क्षेत्र में पवनों की बिल्कुल एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम मानसून बोलते हैं। मिलियन प्लस सिटी की बात करते हैं, मिलियन प्लस सिटी की बात करते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को हम मिलियन प्लस सिटी बोलते हैं। मैदान क्या होता है कि समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र को हम मैदान बोलते हैं। रूपांतरित या कायांतरित सेल की बात करते हैं। रूपांतरित या कायांतरित सेल की बात हम यहाँ पर करते हैं। रूपांतरित या कायांतरित सेल देखिए पूर्व निर्मित आग्नेय तथा अपसादित सेलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई सेलों को हम रूपांतरित कायांतरित सेल बोलते हैं। लिंगानुपात की हम बात करते हैं। भारत में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। देखिए लैगून क्या होता है? देखिए लैगून क्या होता है? खारे पानी की झील। देखो खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोध तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैगून बोलते। खारे पानी की झील जो समुद्र के बालू अवरोध तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है, उसी को हम लैगून बोलते हैं। अब वनस्पति क्या? देखिए किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधे का आवरण को वनस्पति बोलते हैं। वलय क्या होता है? पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शेर परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय को हम क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। देखिए पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शेर परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय को वलय कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटें क्या होते हैं? स्थलमंडलीय प्लेटें क्या होता है? देखिए ध्रुव तलामंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अर्ध स्तर के बड़े बड़े भाग को स्थलमंडलीय प्लेटें बोलते हैं। स्थानीय समय क्या? देखिए किसी स्थान का वह समय जब सूर्य किसी स्थान का देखिए यहाँ पर क्या? किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय समय बोलते हैं। हिमानी की बात कीजिए, बर्फ या हिम। देखिए बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के साथ धीरे धीरे गतिशील होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिमानी बोलते हैं। अब एक आगे की खास बात आपको यहाँ पर की गई है, उसको थोड़ा सा देखिए। एड्रोस्कैन देखिए यहाँ पर, इसमें जो आपको एड्रोस्कैन क्या देखिए, इसका अंग्रेजी में देखिए एड्रोस्कैन। देखिए एड्रोस्कैन इज ए पीरियड इन विच ए पर्सन इज नो लॉन्गर ए चाइल्ड एंड नॉट येट एन अडल्ट। सच पर्सन आर ग्रुपेड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। फिर कहता है आपको कि एलुविया प्लांट क्या? ए लेवल ट्रैक्ट ऑफ लैंड मेड ऑफ एलुवियम और फाइन रॉक मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय ए रिवर। अब देखिए यहाँ पर क्या कि बेस पॉपुलेशन क्या होता है? कि बेस पॉपुलेशन क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अ गिवन टाइम पीरियड। अब इसके बाद कि आपको बायोम क्या? देखिए बायोम क्या होता है? देखिए प्लांट कम्युनिटीज अकरिंग इन डिस्टिंक्ट ग्रुप इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड बायोम। देखिए यहाँ बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर एवरी 1000 पर्सन इन अ ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन क्या होता है? इन मेट्रोलॉजी इट डिनोट्स एन एरिया ऑफ रिलेटिवली लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is found mainly in temperate regions. In geology it refers to a hollow sunken area of the earth's surface. फिर देखिए डेथ रेट क्या होता है? देखिए द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया सच एज स्क्वायर किलोमीटर। फिर देखिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ पीपल ऑफ डिपेंडेंट एज बिलो 15 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स टू पीपल ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव एज 15 to 59 ईयर्स।
इकोसिस्टम की बात हम करते हैं। देखिए इस सिस्टम, यहाँ देखिए इकोसिस्टम की बात, ए सिस्टम विच कंप्राइज द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनाइजिंग लिविंग देयर इन। अब यहाँ देखिए क्या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सराउंडिंग और द कंडीशन अंडर विच ए पर्सन और थिंग एग्जिस्ट इट एंड डेवलप्ड his or its characters. It covers both physical and cultural elements. फॉल्ट की बात देखिए ए लीनियर ब्रेक इन रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट along which there has been displacement in a horizontal, vertical or oblique direction is called, आपको देखिए fauna क्या था, animal life of a given area is called fauna. Flora क्या, the total vegetation or plant of cover of a region. ठीक है, fold क्या होता है, a bend in the rock strata resulting from compression of an area of an earth's crust. देखिए इसके बाद जियोसिंक्लाइन क्या होता है, ये नैरो सेलो एंड elongated basin with a sinking bottom in which a considerable thickness of sediments was deposited by the rivers coming from Angara and Gondwana land. देखिए ग्लेशियर क्या होता है, a mass of snow, देखिए a mass of snow and the ice that moves slowly under the influence of gravity along a confined course away from its place of accumulation. हाँ, इट्स प्लेस ऑफ एक्यूमुलेशन। देखिए यहाँ पर ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन देखिए द ग्रोथ रेट्स ऑफ, देखिए आप क्या, द ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिकेट द रेट्स एट विच द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। इट देखिए इन एस्टिमेटिंग द ग्रोथ रेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंपेयर विद द बेस पॉपुलेशन। इट कैन बी मेजर एनुअली और ओवर अ डिकेड। यहाँ देखिए क्या, इंडियन मैनलैंड की बात, इंडियन मैनलैंड रेफर्स टू contiguous stretch of land mass from Jammu and Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Andhra Pradesh. Indian Standard Time IST, देखिए the local time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east. देखिए inland drainage, a drainage system in which the water of the river don't reach the ocean but fall into an inland sea or lake. देखिए यहाँ पे igneous rocks क्या, देखिए rocks formed as a result of solidification of magma and either below the earth's surface or above it. देखिए lagoon के, a salt water lake is separated from the sea by the sandbars and spits. यहाँ देखिए क्या कि lake क्या होता है, देखिए a body of water, lake देखिए क्या, a body of water that lies in a hollow in the earth surface and is entirely surrounded by land. देखिए lithospheric plates क्या होते हैं, large segments, यहाँ देखिए क्या कि large segments of the earth crust composed of continental and oceanic lithospheric parts floating above the atmosphere. देखिए यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स वन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लोकल टाइम, द टाइम ऑफ ए प्लेस डिटरमाइंड बाय द मिड डे सन इज कॉल्ड द लोकल टाइम. देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स का डिफॉर्मेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग igneous and sedimentary rocks has a result of change in physical and chemical condition due to intense heat or pressure is called metamorphic rocks. Migration क्या होता है, MIGRATION migration. देखिए movement of people from one place to another. Internal migration means movement of people within a country and external migration means movement of people between countries. When people come to a country from another country it is called immigration, IMMIGRATION immigration, and when they leave that country it is called immigration, EMIGRATION immigration. मिलियन प्लस सिटीज़ क्या होता है कि सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन और 10 लाख. 1 मिलियन मीन्स कि 10 लाख. देखिए मानसून ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स ओवर ए लार्ज एरिया लीडिंग टू ए चेंज ऑफ सीजन इज कॉल्ड मानसून. देखिए माउंटेन क्या, देखिए माउंटेन एंड अपवर्ड प्रोजेक्ट फीचर एंड अपवर्ड प्रोजेक्टेड फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस दैट राइजेस टू हाई एल्टीट्यूड एंड यूजुअली स्टीप स्लोप्स इज कॉल्ड माउंटेन. नेशनल पार्क, देखिए
area for preserving and preserving its natural vegetation, wildlife, and the natural environment is called national park. Plain, an extensive area of flat or gently undulating land is called plateau. An extensive elevated area of relatively flat land is called plateau. Plate tectonics is a scientific concept that explains the movement of the cluster plates. The differences in elevation or the physical outline of the land surface or ocean floor is called relief. Subsidence. In meteorology, it is the downward movement of the air. In geology, it refers to sinking of a portion of the earth's surface. Sedimentary rocks. Rocks are composed of sediments and generally having a layered structure is called sedimentary rocks. Sex ratio is defined as the number of females per thousand males. Subcontinent, a big land mass which stands out as a distinct geographical unit from the rest of the continent. Tectonic forces, tectonic forces originating within the earth and responsible for the bringing wide species in the inland forms which is called tectonics. Young mountains, the fault mountains formed during the most recent major phase of faulting in Earth's crust is called young mountains. Here, class 9 geography chapter 6 have been finished.